Hello student, welcome in your Science Olympiad class. So this is the first class of your Olympiad, Science Olympiad, and this is the interface of your Science Olympiad book. Okay, and there are 10 chapters are in this books that we will cover in the so many videos. So today first I tell the which chapters are in this book. The chapter is number 1 plants and animals, chapter 2 birds, chapter 3 food, chapter 4 housing, clothing and occupation, chapter 5 transport, communications and safety rules, chapter 6 human body, chapter 7 earth and universe, chapter 8 matter and materials, chapter 9 light, sound and force, chapter 10 our environment. So these total chapters are in your Science Olympiad. Through the 10 videos we are covered these 10 chapters. Okay, so today I cover the first chapter, that is plants and animals, and the exam will be held through this type of famous set. There are one questions are given, and against this one question there are 4 options are given, and you have to choose the right option. Okay, this is the system of the Olympiad exam. So the first chapter is plants and animals. So here is given some information about this plants and animals, and I hope you have know little bit about this from your textbook also. So don't worry, this is very easy. So let's start. So first you are given the characteristic, and beside this the plants and animals. First is the movement. So in the plants we cannot see any movement because plants cannot move from one place to another on their own. Plant अपने से एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं कर पाते. প্ল্যান্ট বা উদ্ভিদ কখনোই নিজের থেকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভমেন্ট করতে পারে না. বাট হাউ ক্যান উই দেন ফিল দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য অর সো দ্য মুভমেন্ট অফ সি দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট? Yes, when the air is blowing or wind is blowing, then the plant shows their movement by movement there with through their branches. যখন খুব জোরে হাওয়া দেয় বা জোর से हवा चलती है तो प्लांट की जो ब्रांचेस है वो जब नड़ते जो मूव करते उससे हम लोग को पता चलता है कि यस प्लांट्स कैन मूवमेंट. ओके, नाउ एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देयर ओन. लेकिन जो एनिमल्स होती है, कोई भी तरह के एनिमल्स, जैसे कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होती है, ह्यूमन बींग्स होती है, डॉग्स, कैट, लायंस, टाइगर्स, एनी टाइप ऑफ एनिमल can move by their own from one place to another. Next, food. Plants prepare their own food with the help of the photosynthesis process. Right? Plant अपने खाना खुद बना लेते हैं. कौन सा प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. But the animals depend on plants or the other animals for food. Now जो एनिमल्स होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, वो प्लांट फूड के लिए या तो प्लांट के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं या तो वो दूसरे कुछ एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं. नाउ द ब्रीथिंग. प्लांट्स कैन ब्रीथ थ्रू द स्टोमाटा दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. जो कि लीफ के ऊपर रहते हैं स्टोमाटा, उसके थ्रू प्लांट अपना ब्रीथिंग सिस्टम को कंप्लीट करते हैं. और एनिमल्स जो होती है वो डिफरेंट एनिमल्स कैन breathe through the different organs, like fish can breathe through the gills, some insects
can breathe through the spiracles or the tiny holes that is present on the body surface, that is spiracles, and some animals can breathe through the lungs, and some animals breathe can with the help of the skin. That means the different animals breathe through the different organs. Now the sense organ. Do not have sense organ in the plants. Plant की कोई sense organs नहीं रहते हैं. But the animal have well developed sense organ. लेकिन animals की जो होती है, जो living organisms होती है, उसका जो sense organ होती है वो बहुत ही developed होती है, बहुत ही उन्नत, मतलब developed का मतलब जो उन्नति, खूब ही उन्नति मैंने আমরা सेंस ऑर्गन দিয়ে অনেক কিছু ফিল করতে পারি, हम लोग बहुत सारा चीज़ फील कर सकते हैं सेंस ऑर्गन जो है. नेक्स्ट द रिप्रोडक्शंस. प्लांट की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ग्रो फ्रॉम द सीड्स और अदर पार्ट्स. जो प्लांट की जो रिप्रोडक्शंस होती है, रिप्रोडक्शन के मतलब एक चीज़ से दूसरा चीज़ का तो होना, तैयारी होना या तो जन्म लेना नया चीज़ का. तो प्लांट का जो रिप्रोडक्शंस होती है वो उसकी सीड के थ्रू होती है. जो बीज रहती है उससे नया प्लांट की जन्म होती है, या तो दूसरे पार्ट्स, या तो कोई प्लांट की अपने रूट से दूसरा प्लांट होती है, कोई प्लांट की स्टेम से होती है, कोई प्लांट की लीफ से होती है. तो मतलब जो प्लांट होती है वो डिफरेंट पार्ट्स से अपनी रिप्रोडक्शंस करती है. और एनिमल्स में क्या होती है? सम गिव बर्थ टू द यंग वंस. कोई अपनी जैसा ही नया बच्चे का जन्म देते हैं, जैसे कि मैमल्स जैसे होती है वो अपने डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देती है. और कोई होती है कि पहले एग्स देती है, ले एग्स, एंड फर्स्ट दे ले एग्स एंड देन फ्रॉम द एग्स द न्यू वन कम आउट. फिर वो अंडा से दूसरे बच्चे जन्म होती है. तो मतलब इस तरह से वेरिएशन होती है प्लांट और एनिमल्स में. ओके, नाउ हाउ एनिमल्स ईट देयर फूड. सेकेंड टॉपिक्स क्या है? एनिमल्स अपने खाने किस तरह से कलेक्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं. सो एनिमल्स ईट द फूड इन द डिफरेंट वेज. टीयर एंड च्यू द फ्लेश विथ शार्प पॉइंटेड एंड कर्व टीथ. एग्जाम्पल लायन, फॉक्सेस एंड डॉग्स. जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स. कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल. तो कार्निवोरस एनिमल्स की जो टीथ होती है वो शार्प होती है, फ्रंट बहुत ही मतलब वो पॉइंटेड होती है और कर्व्ड होती है. तो मतलब जो खाने का जो हैबिट्स होती है, फीडिंग हैबिट्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का खाने का जो हैबिट है वो दिखाई देता है. जैसे कि swallow whole food, एग्जाम्पल स्नेक एंड फ्रॉग. कोई एनिमल्स swallowing करके खाने को खाते हैं, मतलब डायरेक्टली उसको गिल लेते हैं, उसको च्यूइंग नहीं करते हैं, टियरिंग नहीं करते, उसका टीथ नहीं रहते हैं. जैसे कि स्नेक, फ्रॉग्स और बर्ड्स. जो बर्ड्स होता है वो भी अपने बीक से खाने को मुंह में डालते हैं, फिर उसको swallowing करते हैं, क्योंकि ये सारे जो एनिमल्स होती है इसका टीथ नहीं रहते हैं. तो मतलब दोनों हैबिट हो गया. देखो कोई टियरिंग करके, च्यूइंग करके करते हैं और कोई swallowing करके करते हैं. Next, gnaw with sharp front teeth to eat seeds and fruits. Example, rabbit and squirrel. Rabbit और squirrel जो है इस टाइप का जो एनिमल्स होती है, इसको ये टाइप का एनिमल्स थोड़ा सा हर्ड खाना खाते हैं. They can eat some hard food like nuts, fruits. So for this thing they have a sharp teeth, sharp pointed teeth. Okay, so this type of habit is known as the gnawing. इस टाइप का जो खाने का स्टाइल है उसको क्या बोलते हैं? ग्नैविंग. जैसे कि रैबिट स्क्विरल चूहा जो होती है, रैट जो होती है, उसका देखोगे जो फ्रंट टीथ होती है वो थोड़ा बड़ा होती है. ठीक है. नाउ लैप मिल्क और वाटर विथ देयर टंग, कैट्स एंड डॉग्स. कोई जो होता है वो चाट के खाते हैं. लैपिंग मतलब चाट के. देखोगे जो कैट है, डॉग है, उसको जो खाना हम लोग देते हैं वो लोग, जो डॉग्स होती है वो तो बाइट करके भी खाते हैं, लेकिन कैट जो होती है वो लोग कोई खाना कभी जैसे मिल्क देते हैं, कुछ भी हम लोग लिक्विड टाइप का चीज़ है तो वो चाट के खाते हैं टंग से अपना. तो दिस इज कॉल्ड द लैपिंग. नंबर नेक्स्ट, च्यू कर्ड विथ ग्राइंडिंग टीथ, काउज एंड बफेलोज. Cows, buffaloes and goat. This kind of animals
follow the special type of feeding habit, that is the chewing of cud. इस टाइप का जो एनिमल्स होती है वो कौन सा फूड हैबिट को फॉलो करती है? च्यूइंग ऑफ द कड. च्यूइंग ऑफ द कड का जो प्रोसेस है वो कैसे होते हैं? वो लोग पहले जो खाना खाते हैं, व्हेन दे कैन ईट द फूड, दे फर्स्ट बाइट द फूड एंड देन swallowing इट विदाउट च्यूइंग. पहले जो टाइम को खाते हैं तो वो च्यूइंग बिना, उसको बिना चिबा के उस डायरेक्टली उसको गिन लेते हैं. देन आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों के बाद, व्हेन दे कैन टेक रेस्ट, जब वो रेस्ट करते, सो दे अगेन द ब्रिंग बैक दिस फूड आइटम इनटू द माउथ. वो वापस से खाने को अपने मुंह में लेके आते हैं. फिर देन दैट टाइम दे कैन च्यू इट प्रॉपरली. दिस प्रोसेस इज नोन एज च्यूइंग द कड. इस प्रोसेस को मतलब पहले वो डायरेक्टली बाइट करके गिन लेते, फिर जब वो रेस्ट करती उस टाइम पर आराम से उस खाने को फिर से अपने मुंह में लेके आते हैं और उसको च्यूइंग करते हैं. ये जो प्रोसेस है उसको कहते हैं च्यूइंग ऑफ द कड. और ये प्रोसेस कौन सा एनिमल्स फॉलो करते हैं? यस, काउस, बफेलोज एंड गोट. नाउ सक नेक्टर और ब्लड. एग्जाम्पल, कोई कोई एनिमल्स और इंसेक्ट होती है जो सकिंग करके मतलब चूस के खाते हैं, जैसे मस्क्यूटोज, जो अपने मस्क्यूटोज जो होती है खून चूस के खाते हैं. लीचेस वो भी खून चूस के खाते हैं दूसरे एनिमल्स से. फिर जो बटरफ्लाई होती है वो फ्लावर से नेक्टर को सकिंग करके खाते हैं. इस टाइप का जो इंसेक्ट होती है मतलब वो सकिंग करके अपने खाने को खाते हैं. ठीक है. नाउ the animals and plants depend on each other. These topics I hope all of you know, because this topic is also has been given in the textbook also. How the plants and animals depend on each other. जो plants और animals है वो एक दूसरे के ऊपर dependable कैसे है? क्योंकि अगर plant नहीं रहेगा तो कोई भी animals भी नहीं survive कर पाएगा, और अगर animals नहीं रहेगा तो living organism अगर नहीं रहेगा तो plant भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. बिकॉज दे ऑल बोथ आर डिपेंडेबल टू ईच अदर. हाउ? कैसे? एनिमल्स गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स एंड प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स टू मेक द फूड. क्योंकि जो मेन चीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हाउ कैन वी गेट द ऑक्सीजन? फ्रॉम द प्लांट. So if the plant is not exist on the earth, so we cannot get the oxygen, and without oxygen we cannot survive. Similarly, if the living organism or the animals does not exist on the earth, so the carbon dioxide, the amount of the carbon dioxide less, and without the carbon dioxide plants cannot able to make the photosynthesis food due to the photosynthesis process. So that means the plants and the animals both are dependable to each other. A food chain shows how the each living things get its food, and some are carnivorous, like some animals and herbivorous plant eating. फूड चेन क्या दिखाती है हम लोग को? फूड चेन एक सीक्वेंस है जो हम लोग को ये दिखाते हैं कि अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेबल रहते हैं. जैसे कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होती है वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं खाने के लिए, और जो कार्निवोरस एनिमल्स लायन, टाइगर, ये सारे खाने के लिए डिपेंडेबल रहते हैं किसके ऊपर? हर्बीवोरस के ऊपर. तो अगर हर्बीवोरस नहीं रहेगा तो कार्निवोरस एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा, और अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा. So in this way, all living organism, plant, animals, all these are dependable to each other. Now, a network of many food chain is called the food web. ऐसे बहुत सारा का फूड चेन हम लोग बना सकते हैं, और बहुत सारा फूड चेन को एक साथ कहते हैं फूड वेव. ओके. Now, the root. This is the part of the plant and the function. There are so many parts present in the plant: root, leaf, stem, flowers, seed, etc. So what is the root? Root is the underground part of the plant. Root किसको कहते हैं? Underground part है. It fixes the plant in the soil and it absorbs water and minerals from the soil. रूट का काम क्या है? रूट का काम है प्लांट को अच्छे से होल्ड करके रखना मिट्टी के साथ टाइटली, और मिट्टी के अंदर से it can absorb the minerals and soil from the soil. Absorb the water
एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स हैव आइदर टैप रूट्स और फाइब्रस रूट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स जो होती है वो टू टाइप्स का होती है, टैप रूट्स होती है, फाइब्रस रूट होती है। See this picture, this is the tap root. The main root that grows from end of the stem and many small root grow from it. देखो टैप रूट जो होती है सबको पता ही है टैप रूट कैसे होती है। टैप रूट में एक ही मेन रूट रहता है जो अंदर तक जाती है, नीचे तक, और उससे छोटा छोटा साइड रूट्स निकालती है। लेकिन जो फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट दे हैव अ नो मेन रूट, इसका कोई मेन रूट नहीं होते हैं। A number of roots grow from the end of the stem. स्टेम के ठीक नीचे से बहुत सारे रूट एक साथ निकालते हैं, जैसे कि लगता है ब्रांचेस की तरह। नाउ दिस सेकेंड पार्ट इज द स्टेम। स्टेम इज दिस पार्ट इज प्रेजेंट द अबव द सॉइल। मिट्टी के नीचे ऊपर वाला जो पार्ट होती है प्लांट की, उसको कहती है स्टेम। इट सपोर्ट द प्लांट एंड कैरीज वाटर एंड फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Which minerals and water absorb roots from the soil. These water and minerals carries to the different parts of the plant through the stem. जो रूट ने एब्जॉर्ब करते हैं वो स्टेम जाके डिफरेंट पार्टों तक पहुंचा देते हैं। एंड इट ऑल्सो कैन गिव द सपोर्ट टू प्लांट टू स्टैंड अपरेट। जो भी प्लांट जो सीधा खड़ा रहते हैं वो किसके हेल्प से, स्टेम के हेल्प से। नेक्स्ट द लीफ। Green leaves make food using the water, sunlight and carbon dioxide. Leaf blade, side vein and the main vein are the parts of the leaf. Leaf का जो काम होती है वो मेन काम होती है प्लांट में, क्योंकि लीफ प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। Leaf can make the food with the help of the water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. Okay, and it has also a main vein and the side vein. Okay. Now next is the flowers, fruits and seeds. Flowers changes into the fruit which has seeds inside it and seed grow into the new plants. Flowers is the most important thing of the plant also, because it is a very beautiful part of the plant. It makes beautiful to the plant, and flowers turn into the fruits, and inside the fruit there are seeds, and from the seeds the new plant come out. Okay. So flower is also a very important part of the plant. Now, so this is the some basic information from this chapter. Now we can discuss about the question answer of this chapter. Okay. See, let's see. This is the practice question. In every chapters there are 20 questions, and against this 20 questions there are 4 options for each question. Okay. Number 1, see, select the odd one out on the basis of how the given animals eat their food. इनमें से कोई एक एनिमल्स को चुनना होगा जो कि दूसरे में से ऑड है, मतलब अलग है खाने की हैबिट में। सी, फर्स्ट पिक्चर इज गिवन द स्क्विरल, देन रैट, देन स्नेक एंड देन रैबिट. सो सी हियर द स्क्विरल, रैट एंड रैबिट, these 3 animals follow the same method habit. Which feeding habit? Yes, gnawing the food. Squirrel, rat and guinea pig. This is the guinea pig or rat, guinea pig. This is the guinea pig. So these 3 animals gnaw their food. Okay, gnaw their food. But here the snake is swallowing the food. That means the snake is the different from these 3. That is, here the right answer is number 3. Okay. Now number 2. Which of the following animals shows the eating habit similar to that of the animal shown in the figure? That means, what is the meaning of this? নিচে যে অ্যানিমালসের ছবিটা, বার্ডসের ছবিটা দেওয়া আছে, ক্রোয়ের ছবিটা, जो बर्ड्स की छवि पिक्चर दिया गया है, इसकी जो फीडिंग हैबिट्स है, इसके साथ जो ऑप्शन दिया गया है, इसका साथ कौन सा एनिमल्स की फीडिंग हैबिट मैचिंग करते हैं, सेम है. देखो
A number is the rat. First of all, you should be know that which feeding habits follow the crow. Crow is the which type of animal? Carnivorous, herbivorous or omnivorous? Yes, crow is the omnivorous because crow eat plant products as well as it can also eat the flesh of the other animals, right? So that is, the crow is the example of omnivorous. Now among these four animals, rat, cow, deer and goat, among this, which animal is similar to the crow? Yes, rat. Because rat and crow are omnivorous that eat both plants and the flesh of the other animals, while the cow, goat and deer are herbivorous. They can eat only the plant products, right? Now number 3. I am a part of the leaf that carries water to it. I give rise to many thinner branches. I am a what? Leaf blade, lamina, midvein and none of this. What is the correct answer? Leaf blade. What is the leaf blade? The broad part of the leaf is known as the leaf blade. Leaf blade किसे कहते हैं? लीफ का जो बड़ा वाला पोर्शन होती है, that is called a leaf blade. Lamina is also a leaf blade and the lamina is the same thing. Then midvein. Yes. So this number C, option C is the right answer. In the middle of the leaf blade is the main vein or midvein. Midvein और जो main vein होता है वो same होता है. So plant की leaf की जो middle से जाती है उसको कहते हैं main vein और midvein, which gives rise a number of side branches or side vein. These veins carry water to the leaf. तो main vein से जो साइड से जो बहुत सारा छोटा छोटा वेन निकलता है उसको कहते हैं साइड वेन्स. जैसे यहाँ पे बोला गया कि आई गिव राइज टू मेनी थिनर ब्रांचेस. ठीक है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मिड वेन. ओके. नाउ नंबर 4. लीव्स हेल्प अ प्लांट टू डैश. नंबर ए, प्रिपेयर इट्स ओन फूड. नंबर बी, ब्रेथ. नंबर सी, stand erect. नंबर D, both A and B. तो जो लीफ होती है, how the leaf help the plant? लीफ प्लांट को हेल्प कैसे करते हैं? खाना बनाने में हेल्प करते हैं और किस में हेल्प करते हैं? ब्रीथिंग लेने में. Because in the leaf it has a tiny holes are present on the surface of the leaf. That is called stomata, and through this stomata plant can breathe. So that means here option number A and option number B both are correct. So here the right answer is option number D, both A and B. Okay. Now number 5. Select the plant among the following in which the stem stores food. नीचे पे जो भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा प्लांट पे स्टेम पे अपने एक्स्ट्रा खाना को स्टोर रखते हैं? कैरेट, जिंजर, स्पिनच, मैंगो. तो करेक्ट आंसर इज जिंजर. करेक्ट आंसर इज जिंजर बिकॉज इन द जिंजर द स्टेम स्टोर्स फूड एंड बिकम्स अ swallowing. दैट इज वाई द जिंजर इज कैन swallow. में ये थोड़ा सा जो मोटा जैसे हो जाता है क्योंकि जिंजर जो होती है वो प्लांट की स्टेम वाला पोर्शन होती है. द जिंजर वी ईट इज एक्चुअली swallow स्टेम. तो जिंजर का जो पोर्शन हम लोग खाते हैं प्लांट की वो एक्चुअली जिंजर प्लांट की स्टेम वाला पोर्शन होती है. नाउ नंबर 6. P shows how each living organism gets its foods and
how they depend on one another for fulfillment of their food requirements. P is called dash. See the picture first. Wait. Okay. P shows how each living organism gets its food. P एक टर्म है, P একটা টার্ম ইউজ করা হয়েছে যে টার্মটা আমাদেরকে এটা দেখাতে সাহায্য করে বা বোঝাতে সাহায্য করে যে হাউ দ্য লিভিং অর্গানিজম ডিপেন্ড অন ওয়ান অ্যানাদার টু ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য ফুড রিকোয়ারমেন্টস। কীভাবে প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজম সেগুলো একে অন্যের উপর ডিপেন্ডেবল থাকে। এটা কোন টার্ম দিয়ে আমরা বুঝতে পারি? ফুড সিরিজ, food chain, food group, or all of this? The right answer is the food chain. So food chain is a series of sequence which shows how one living organism eats other living organism and is a turn eaten by the other living organism. Okay, so the right answer is here food chain. Now number 7, what is the function of part P of an apple fruit? See the picture. So which part of the P? P is the seed. Here in this picture the P is the seed. Okay, and what is the function of the seed? See, option number A, it gives sweet taste to the fruit. It helps in ripening of the fruit. It gives rise to a new apple plant. None of this. सीडेर जोने की হয়? सीडेर जोने की कोनो फलटा खेते बेशी मिष्टि लगे, उसको खाने में ज़्यादा मीठा हो जाता है। इट हेल्प्स टू राइपिंग ऑफ द फ्रूट, ये फल को जल्दी जल्दी पकने में हेल्प करते हैं। कि इट गिव्स राइज टू अ न्यू एप्पल प्लांट, इससे न्यू एप्पल प्लांट ग्रो हो सकते हैं। या तो नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द लेवल पार्ट ऑफ द पी एप्पल फ्रूट इज द सीड एंड सीड व्हेन सोन इन द सॉइल। अगर इस सीड को हम लोग जाके कोई मिट्टी पे सॉइल पे उसको प्लांट कर देते हैं एंड गिव राइज, सो एंड वी कैन गिव द वाटर ऑन इट, देन द न्यू प्लांट कम आउट फ्रॉम दिस सीड. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज it gives rise, option number C, it gives rise to a new apple plant. Okay, now which of these living things would die if there would be no green plant on the earth? इनमें से कौन से लिविंग थिंग्स मर जाएगा अगर प्लांट पे एक भी प्लांट नहीं रहेगा? A and C only, B and C only, B and D only, A, B, C and D. कौन सा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्लांट के बिना तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा, राइट? सो विदाउट प्लांट देयर आर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. ओके, सो ऑप्शन नंबर A, B, C, D all are cannot survive without plant. So your correct answer is option number D, A, B, C, D. Okay, now number 9. See, a plant is placed in a black box with a small opening. See, this is the opening part. This is the opening part. This gapping is the opening part, and this is the black box. This is the black box, and plant is placed in the black box with a small opening as shown in the given diagram. Sorry. The black box is placed in the sunny place and plant is watered daily. In which direction? 1, 2, 3 or 4 will the plant grow after few days? अगर प्लांट को इस तरह से एक ब्लैक बॉक्स के अंदर रख दिया, सिर्फ एक ही ओपनिंग रखी, एक ही जगह पे खाली रखते और उसको एक सनी जगह पे रख दिया जहाँ पे को सफिशिएंट अमाउंट पे लाइट मिलते हैं और उसमें डेली हम लोग वाटर भी देते हैं, तो कौन सी डायरेक्शन पे वो बढ़ने लगेगा?
ऑप्शन नंबर A1, ऑप्शन नंबर B2, ऑप्शन नंबर 3C एंड ऑप्शन नंबर D इज 4. कौन सा डायरेक्शन पे जाएगा देखो, ऑप्शन नंबर B, 2, नंबर 2 डायरेक्शन पे, क्योंकि नंबर 2 की डायरेक्शन पे जो जगह है वो खाली है, मतलब वहाँ से उसको एयर मिल सकते हैं, क्योंकि प्लांट जो ग्रो करती है उसके लिए उसको एयर भी चाहिए. लाइट उसको मिल रहा है क्योंकि वो सनी प्लेस पे रखा गया है, वाटर भी हम लोग दे रहे, और टब में जो मिट्टी है उससे वो खाना भी बना सकते, लेकिन एयर उसको भी ज़रूरत, क्योंकि एयर से अगर जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो खाना नहीं बना पाएगा. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट विदाउट द कार्बन डाइऑक्साइड. सो from the direction number 2 the plants can grow. Okay, plants grow the direction of the light. As light is entering the box from the hole, thus plant will grow towards the hole, that is towards the direction of the 2. Okay, now number 10, which level part is seen only in an adult plant and not in the young plant? See, here is given P means leaf, S means stem, Q means flower and the R is the root in this given picture. So among this part, which part we cannot see in the younger plant? इनमें से कौन सा पार्ट को हम लोग यंगर प्लांट में, मतलब जो प्लांट जब छोटे होते हैं, चारा गाछ होती है, जो सैपलिंग होती है, उसमें देखने को नहीं मिलते हैं. कौन सा देखोगे? So in the given figure, P, Q, R and S represent the leaf, flower, root and stem. But the seed produce seedling which grows into a young plant. A young plant produces new branches, leaves, roots when it matures. जब न्यू प्लांट ग्रो करते तो उसमें रूट भी होता है, लीव्स भी रहते हैं. It produces flowers also. But the flowers are seen only in the adult plant. लेकिन जब छोटे से प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर नहीं आता है. वो जब प्लांट जब एडल्ट हो जाते, बड़े हो जाते, तब उसमें फ्लावर आते हैं. तो इनमें से एडल्ट यंग प्लांट में हम लोग को कौन सा पार्ट को हम लोग नहीं देख पाएंगे? यस, नंबर सी, क्यूब वाला पार्ट, क्योंकि क्यूब वाला पार्ट में क्या है? फ्लावर. यंग प्लांट में फ्लावर नहीं आता है, जब वो एडल्ट हो जाते, ग्रो करने लगते, तब उसमें फ्लावर होते हैं. ठीक है. नाउ नंबर 11, Which of these is not a modified root? इनमें से कौन सा रूट नहीं है? ये पोटैटो है, स्वीट पोटैटो. दिस इज द गार्लिक, दिस इज द टर्निप, दिस इज द रेडिश. रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो, दिस ऑल आर roots, but the garlic is the modified stem. Sweet potato, turnip, radish are modified roots. ये तीनों रूट से, सिर्फ गार्लिक जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है. ओके. नंबर 12, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. इनकरेक्ट मतलब जो गलत है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज करना है. नंबर ए देखो, cows and buffaloes eat their food in a similar manner as the goat. ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? यस, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि काउज और बफेलोज जो है वो उसका जो फीडिंग हैबिट्स है वो गोट की तरह सिमिलर है, तो ये करेक्ट है. ये ठीक, तो मतलब ये चूज नहीं होगा. नंबर बी, लायन एंड वुल्व्स ईट द फूड इन अ सिमिलर मैनर एज अ हाइना. यस, हाइना कार्निवोरस एनिमल है. हाइना जिस टाइप का खाना खाते, सेम टाइप का खाना लायंस और वुल्व्स भी खाते, क्योंकि ये दोनों भी कार्निवोरस एनिमल है. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, इसको भी चूज नहीं किया जाएगा. नंबर सी, बटरफ्लाइज एंड मस्क्यूटोज ईट द फूड इन अ सिमिलर मैनर एज अ लीच. यस, ये सारे एनिमल्स के भी, इंसेक्ट के भी जो फीडिंग हैबिट्स है सेम है. क्या है? सकिंग. बस मस्क्यूटो, बटरफ्लाइज एंड लीच, they can also get their food by sucking method. sucking करके वो खाना कलेक्ट करते हैं. लेकिन नंबर डी, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारा कुछ सही है. तो कौन सा चूज करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी को, नन ऑफ दिस, क्योंकि सारा सही दिए गया, इनकरेक्ट तो एक भी नहीं है. ठीक है. नाउ नंबर 13, unscramble the letters given in the box
to get the name of the animal. देखो ये जो बॉक्स पे जो वर्डिंग लेटर्स दिया गया है, अगर इसको ये अनस्क्रैम्बल है मतलब इसको सजाया हुआ नहीं है. इफ वी कैन अरेंज दिस लेटर सो वी कैन गेट वन नेम ऑफ द इंसेक्ट एंड द नेम इज, व्हाट इज द नेम? डू यू नो? Yes, this is earthworm. This is earthworm. The letter given box is unscrambling. If we can arrange it, so this is earthworm. What is the spelling of earthworm? See, E A R T H, earthworm, WORM. Okay, this is the earthworm. Now select the correct option regarding this animal. अब earthworm के साथ चारों ऑप्शन में कौन सा एनिमल मैच करते हैं? earthworm suck blood? No, it is not right. नंबर बी, it carries load for us. क्या earthworm हम लोग की लोड को कैरी करते हैं? No. It has a long sticky tongue. No, it is not. इसका स्टिकी टंग है? नहीं है. It swallows soil. क्या ये सॉइल को सॉलो करते हैं? Yes. ये मिट्टी के अंदर रहते हैं. Earthworm can live under the soil and it swallows the soil. ये मिट्टी को सॉलोइंग करके खाते हैं. Okay. So option number D is the correct answer. Now number 14. Match column 1 with column 2 and select the correct option. In column 1 there is given 5 names and in the column 2 there is only 3 organs, breathing organs. See, tiger, ant, fish, butterfly, gorilla. So tiger match with lungs. Tiger can breathe through the lungs. Ant breathe through the spiracles. Fish breathe through the gills. Butterfly breathe through the spiracles. Gorilla breathe through the lungs. So which option is correct here? A is matched with 2. Yes, tiger is matched with 2. It is true. B is 3. Ant is spiracles. Right. Next, C, fish matched with number 1, gills. It is right. D, match with number 3, butterfly match with number 3. Yes, it is true. Then gorilla, number E, match with number 2, lungs. Yes. So number 1 is also is correct. Okay. So that is, this is the right answer. Option number A. Okay. Now number 15. Animals that gnaw dash have very sharp front teeth. Option number B, bite food repeatedly and chew it hard. वो बार बार बाइट करते रहते हैं और उसको च्यूइंग करते, जो भी हार्ड मटेरियल से उसको च्यूइंग करते हैं अच्छे से. डू नॉट बाइट और च्यू द फूड, वो बाइट नहीं करते, च्यूइंग नहीं करते. डी, बोथ ए एंड बी. सो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी. बिकॉज जो भी ग्नैविंग करके खाना का, जैसे कि रैबिट, स्क्विरल, रैट, वो क्या करते हैं, उसका बहुत ही शार्प और फ्रंट, जो फ्रंट टीथ होती है वो बहुत ही शार्प होती है और शार्प टीथ की हेल्प से वो बाइट भी अच्छे से करते हैं और खाने को च्यूइंग भी अच्छे से करते हैं. तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है. सो हियर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट. ओके. नंबर 16. Study the given classification and chart carefully and identify the D, E, F and G. See, here is given some shape, oval shape, shape of the leaves, oval, और एक दिया है हार्ट शेप. ओवल के नीचे 2 है, वो नहीं दिया है. फिर देखो ई में कुछ शेप होगा क्योंकि ऊपर में सारा शेप ही है और नीचे में लीफ का नाम दिया गया है.
तो ओवल शेप का क्या हो सकता है, ओवल शेप के हो सकते हैं गुआवा, गुआवा का जो है वो गुआवा लीफ जो है वो ओवल शेप का आता है, तो ओवल के नीचे होगा गुआवा, तो मतलब डी में होगा गुआवा। ओके। लोटस, लोटस का जो शेप होता है वो किस तरह का होती है, लोटस का जो शेप होते हैं वो लोटस का राउंड शेप के होते हैं। यू कैन सी द लोटस लीफ एंड द शेप ऑफ द लोटस लीफ इज द राउंड। ओके। सो ई में होगा राउंड, डी में क्या होगा, डी में होगा गुआवा, ई में हो गया राउंड। हार्ट शेप्ड, हार्ट शेप्ड का कौन सा लीफ हो सकता है, पीपल, पीपल ट्री है वो हार्ट शेप्ड लीफ, पीपल का जो पेड़ होती है उसका हार्ट शेप का लीव्स रहते हैं, तो एफ में होगा पीपल। और जी में होगा पाइन, पाइन का शेप कैसे, लीफ का निडल लाइक, तो जी में होगा निडल लाइक। तो अभी देखते हैं डी में आ गया, ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या है देखो, डी में है पीपल, ओवल शेप का हो गया पीपल, नहीं ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पीपल का जो प्लांट की जो लीफ होती है वो ओवल शेप की नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, डी इज़ द गुआवा, ओवल शेप, यस डी इज़ द गुआवा। लोटस का शेप क्या बताया मैंने, राउंड, ई इज़ द राउंड, ओके करेक्ट। देन एफ, हार्ट शेप का एफ का पीपल, ये भी करेक्ट है। और जी पाइन का होगा निडल शेप, मतलब ये सारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट नंबर 17, Farheen placed a grasshopper and a dish of water in a sealed glass. सील्ड मतलब पूरा बंद किया हुआ ग्लास की बॉक्स में एक पानी का डिश रख दिया और ग्रासहोपर को रख दिया। However, after few minutes the grasshopper died. लेकिन थोड़े देर बाद वो ग्रासहोपर जो उसका मर गया। The grasshopper died due to the lack of, उसको पानी तो दिया गया था, फिर वो क्यों डाइड हो गया, किसकी लैकिंग में, किसकी अभाव, मतलब कि क्या चीज़ उसको नहीं मिला, एयर, फूड, वाटर, कौन सा होगा, एयर, फूड, वाटर। ग्रासहोपर फूड खाने से इतना तुरंत नहीं मर जाते, थोड़े घंटों वास्ते वो जिंदा रहते फिर वो मर जाते विदाउट फूड। लेकिन इसमें क्या है कि हाउएवर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्सों में मर गया, अगर कुछ घंटों तक होता तो फूड भी हो सकता है, तब वो एयर भी होता है और टू भी, मतलब बी वाला ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ घंटों तक के बाद उसको एयर भी नहीं मिला और फूड भी नहीं मिला। लेकिन इसमें दिया कि आफ्टर फ्यू मिनट्स, तो फ्यू मिनट्स में कोई भी चीज़ क्यों मर जाता है, अगर उसको एयर नहीं मिलेगा, एयर और वाटर नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है, ए ओनली 1 होगा, मतलब उसको एयर नहीं मिलने से वो तुरंत मर गया। नाउ डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 18 और 19, देखो ये जो डायरेक्शन दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। स्टडी द गिवन फूड वेव एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छे से पहले इस डायग्राम को देखो, देखो ए से फूड चेन है, फूड चेन का मतलब क्या था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। ए एक खाना प्लांट जो भी हो सकता है, ए को देखो बी खाता है, बी को फिर जी खा रहा है, फिर ए को सी भी खा रहा है, सी को डी खा रहा है, डी को फिर ई खा रहा है, ई को एफ खा रहा है, ऐसे करके एक फूड चेन। तो और मैंने क्या बोले थे, व्हाट आई एम सेइंग दैट व्हेन द सो मेनी फूड चेन इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड द फूड वेव। जब एक साथ बहुत सारा फूड चेन होता है फॉलो, तो उसको कहते हैं फूड वेव। तो यहाँ पे देखो एक साथ बहुत सारा फूड चेन दिखाया गया है, एक तो ए सी डी, डी से ई, ई से एफ, ये एक फूड चेन हो गया, फिर ए से बी, बी से जी, ये एक फूड चेन हो गया। तो इसमें बहुत सारा फूड चेन एक साथ है, तो ये हो गया फूड वेव। नाउ हाउ मेनी फूड चेन आर देयर इन द फूड वेव, इसमें कितना सारा फूड चेन दिखाया गया, देखो एक तो ए, देन बी, देन जी, ये एक हो गया, और एक हो गया ए, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, ये एक हो गया। दूसरा हो गया ए सी डी
देन ई से हो गया जी, ये तीसरा हो गया। और एक देखो और क्या क्या है, ए से आई, ये फोर्थ नंबर हो गया। और भी है देखो ए से फिर सी से फिर डी और डी से आई, ये और एक हो गया, 5 हो गया। और एक देखो एच से एक हो गया एच से सी, ये एक हो गया। 6 7 में देखो एच से सी, एच से बी, फिर बी से जी, ये 7 नंबर हो गया। और देखो और भी है, और क्या क्या देखो एच से और भी है, एच फिर सी से फिर डी से ई से जी, 8 नंबर हो गया। और है देखो एच से और एक है सी, फिर सी से डी से ई से एफ और एफ से जी, मतलब टोटल 9 food chain shows here in this diagram. So there are, what is the correct answer in this food web? There are 9 food chain. Okay. Now 19. Which one of the following shows the correct grouping of the various organism in the web? जो A और H है, इससे बहुत सारा देखो एरो गया है, तो मतलब ऑल द फूड चेन स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। हम सबको पता है कि जो फूड चेन होते हैं वो स्टार्टिंग होता है प्रोड्यूसर से, जिससे खाना डायरेक्टली मिलता है। तो प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट। सो विच आर डिपेंड बाय ए एंड एच इन द गिवन फूड वेब। जो ए और एच जो है वो प्लांट है। देन बी एंड सी आर हार्विवोरस एज द ईट प्लांट्स ओनली। जो बी एंड सी दिखाई दे रहे हैं वो देखो सिर्फ डायरेक्टली प्लांट को ही खा रहा है, मतलब ए और एच को खा रहा है। तो मतलब ये सारा हो गया हार्विवोरस। एंड डी ई एफ और जी दे आर कार्निवोरस, ये सिर्फ एनिमल्स प्रोडक्ट को ही खा रहे हैं। एंड आई आर कार्निवोरस एंड आई इज, जो आई होता है वो प्लांट को भी खा रहा है डायरेक्टली, जैसे ऐसे प्लांट को भी खा रहे हैं और एनिमल्स को भी खा रहा है, मतलब आई इज एन ऑमनिवोरस बिकॉज इट ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑप्शन नंबर डी वाला देखो ठीक सही होगा। पहले हो गया ए और एच प्लांट प्रोडक्ट, फिर बी और सी हो गया हार्विवोरस, और फिर आई हो गया ऑमनिवोरस, और डी ई एफ जी ये हो गया कार्निवोरस। ओके, नाउ 20 नंबर, इन द गिवन फूड वेब अ डिक्रीज इन द स्पैरो पॉपुलेशन इज लाइकली टू कॉज। पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखो। स्पैरो किसको खाते हैं? कैटरपिलर को। ओके, स्पैरो इज इट द कैटरपिलर एंड कैटरपिलर्स द प्लांट इज ईटन बाय द कैटरपिलर। कैटरपिलर किसको खाते हैं? प्लांट को खाते हैं। और लिजर्ड कैटरपिलर को खाते हैं, और स्पैरो को कौन खाते हैं? स्नेक्स खाते हैं। ठीक है, और लिजर्ड को भी स्नेक्स खाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फूड वेब अ डिक्रीज इन द स्पैरो पॉपुलेशन इज लाइकली टू कॉज डैश। अगर स्पैरो का पॉपुलेशन कम हो जाते हैं, स्पैरो को जो नंबर से वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो क्या क्या होगा? ए डिक्रीज इन द प्लांट पॉपुलेशन। अगर स्पैरो कम हो जाएगा तो स्पैरो को कौन खाते हैं? स्पैरो किसको खाते हैं? स्पैरो कैटरपिलर को खाते हैं। अगर स्पैरो कम हो जाएगा तो मतलब कैटरपिलर की नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैटरपिलर को खाने वाला स्पैरो नहीं है, तो कैटरपिलर का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और कैटरपिलर अगर बढ़ जाएगा तो प्लांट की जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लांट को कैटरपिलर खाते हैं। कैटरपिलर अगर नंबर पे ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा प्लांट को खा लेगा, तो प्लांट की जो नंबर्स होती है वो डिक्रीज हो जाएगा। और तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए डिक्रीज इन द प्लांट पॉपुलेशन। अगर स्पैरो कम हो जाएगा उसके साथ साथ प्लांट भी कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द लिजर्ड पॉपुलेशन। कैटरपिलर अगर ज़्यादा होगा तो लिजर्ड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लिजर्ड को भी ज़्यादा खाना मिलेगा, क्योंकि लिजर्ड कैटरपिलर को खाते हैं। तो जिसको खाना ज़्यादा मिलेगा वो खाना ज़्यादा उसका नंबर्स इंक्रीज होगा। तो ये भी सही होगा। तो मतलब 1 और 2 दोनों ही सही होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है? A 1 and 3 only? No, it is not. 1 and 2 only? Yes, it is correct. 2 and 3 only? No. 2 only? No.
That means here the correct answer is 1 and 2. Option number B is the correct answer. So this is the chapter 1 that we have completed today. I hope this video helps you to understand this chapter properly. Thank you students. Have a good day. In the next video I will discuss the second chapter. Okay. Bye bye.